नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, वड़कम, केम छो, कसकाय, सस्त्रियकाल, आदाब। मैं हूँ भाविन मोमाया, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ, दिल से बोल के हमारे सेकंड बॉलीवुड जैम सेशन में, जहाँ हमारे गेस्ट है दीपेश गर्ग। और इनके बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं। ही इज वर्किंग विथ वन ऑफ द रिनाउंड शेयर्ड स्पेस co-working internationally renowned offices, and he's working as an operations manager. He's staying at Mumbai, Dahisar. Also, regarding his hobbies, he loves cooking, playing guitar, listening music, and so things. So this is the first session where I and Dipesh are going live for an Bollywood jam session. So thank you, Dipesh, for joining with me on this session. Welcome, Bhavin. Yeah. So I think let's go ahead with the Bollywood jam. So we have already 14 users, viewers who have joined this live session. So it's all over to you, and then we will have a fun session. So I have bifurcated this interview into 3 parts. So first was the introduction, which we have completed. Second is the Bollywood jam, where you will go ahead and play your music. Yeah, you will show us your talent, and accordingly, and we will end up afterwards with fun interview session for around 5 to 10 minutes. Okay? Yes, thank you, Bhavin. Thanks for inviting. First of all, it's a very nice Saturday today. So, Kasakai, Mumbai. Hello, everyone. So we'll start with as suggested by Bhavin. He wanted some rocking track. Correct. So here we go with one of the famous song, which was recently, which is from the movie Kabir Singh. The name of the song is Bekhayali. Wow. So let's. ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, तू बिछड़ना है जरूर ये सवाल है, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, जिससे मैं फासले भी तेरे बेमिसाल आए। जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, मैं दूर फासला मिटा, तू ख्वाब तू जगा, मैं तुझसे जोड़ दूँ। क्या बात है, क्या बात है। So, superb. What a I'm start. sorry about the lyrics. I'm not good with lyrics. No, it was तो really माफ कर देना. really fabulous. Awesome. So guys, you also can So, suggest if you want any kind of special request to have any kind of song, so you guys can let us know, and we will try to match up. We will try up to have your one particular song. So just have in comment session. Please mention in the comment session. So Bhavin, by the time we get any request, what I'll do is, what I have, as of my this thing, मैंने प्लान किया है कि एक जर्नी प्लान करते हैं from the old 90s and 80s to recent songs. Okay. So I'll start off with the famous hits from the, late 80s and 70s. Mm-hmm. It's a mashup basically. So it's my personal favorite as well. Many of them might have heard it on YouTube as well. Okay. It's taken from the very famous band called Scoopoo. So I'll start with my very first song, which I learned for the very first time on guitar. Okay. That is एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. Amazing. Go ahead. So here we go.
था हो गई अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई क्या हुआ मेरा पूछो ऐसी बात हो गई वो अचानक आ गई क्यों नजर से सामने जैसे निकल आया घटा चेहरे पे बिखरी दिल में रात हो गई अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई ये शाम हो ये जा मुझे रोज कोई खींचे तेरी ओर ये जा चेहरा होगा रंग सुनहरा ये कोई राज में गहरा मुझे बता दे तू किससे आ गया है वो कौन है जो आके दिल से आ गया है आज कल फिर मेरे प्यार में करके हर गया सबको मालूम है और सबको खबर हो गई मेरे सामने वाली खिड़की में इसका टुकड़ा रहता है सोचते हैं कि वो हमसे टुकड़ा रहता है काम डाले खिड़की डाले तुम खिड़की बजाना छोड़ दो तुम खिड़की बजाना छोड़ दो चला जाता हूँ किसी दिल में धड़कते दिल के तराने अपना दिल तो आवारा न जाने किसी से आएगा अपना कर बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया फिर भी न समझा बोला है बेचारा न जाने किसी से आएगा अपना दिल तो आवारा न जाने किसी से आएगा ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम कभी कभी तेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। Thank you. क्या बात है। Round of applause for you, Dipesh. Really, it was so. Thank you. To listen you after so long, and wow, amazing! You rocked it, man. As always, you rocked it. Super. Thank you so much. All the viewers who all are watching, they all are enjoying with us all together, because seriously, guys, this is what the talent is, and this is what I thought of to bring up in front of all of you. And seriously, Dipesh, thumbs up. Once again, keep going with the jam what you have. I think Shweta has written nice. Thanks, Shweta. Thank you. Yeah. So, moving ahead, we'll go up. Flashback तो सुन लिया, old is gold तो सबको पता है. So, थोड़ा और आगे जाते हैं. Late 90s का गाना थोड़ा. बहुत सारे गाने हैं अच्छे, but these are some selective tracks which I have chosen from the very famous albums of the very famous singers as well. So this is a mashup of song जो बहुत फेमस हुआ था, डूबा डूबा रहता हूँ, मोहित चौहान का. फिर लकी अली, ओ सनम,
And yes, I'll try to add on some more jams sessions. La 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 la. डूबा रहता है दीवाना बन गया मैं क्या तेरी डूबा रहता हूँ दीवाना बन गया मैं क्या तेरी अब करते नहीं रातें कटती नहीं तस्वीर से बात बनते नहीं वो आजा कोई जाने ना पहचाने ना कि हुआ कैसे कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे तुम आ गए बाहों में से कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे बाहों में से बेवफा बेवफा न जाना जमाना के दिल है खिलौना जाना है अब चाहे दिल का लगाना नजरों से अब क्या मुझको गिराना भी गए तो बुरा जाना आंखों में बसी हो पर दूर हो गए दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन ओ सनम मेरे प्यार की कसम आंखों में आंखों में आंखों में आंखों में आंखों में तेरा है चेहरा धड़कती है तेरी ही याद करती है दीवाना आंखों में तेरा है चेहरा धड़कती है तेरी ही याद करती है दीवाना आए कहाँ गई वो रातें मेरी मीठी बातें करती थी दीवाना आंखों में तेरा है चेहरा धड़कन में तेरी ही याद करती है दीवाना 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 क्या बात है थैंक यू वंडरफुल वंडरफुल। तो अब जैसे जर्नी हमने 80s से 90s में लाई तो 90s के बाद अभी आपका इरादा है आगे के और नए वर्जन पे आने का? ऑफ कोर्स लेकिन टेक रेस्ट ऑफ कोर्स। तब तक मैं एक छोटा सा आपको सवाल मुझे ऑल ऑफ सडन आया है तो लेट मी आस्क यू दैट फर्स्ट। सो दीपेश दीपेश हाउ डिड यू कम टू नो दैट यू हैव अ पैशन अबाउट टू प्ले गिटार और ये कैसे माइंड में आया कि इज इट लाइक फ्रॉम स्टार्ट इटसेल्फ बचपन से ही आप म्यूजिक के बहुत करीब है और आपने बचपन से ही सीखना शुरू किया कि हाउ इज इट? टेल अस द स्टोरी अबाउट दैट। So basically the story behind this is कि frankly speaking I regret कि ये बचपन से नहीं है, बचपन से होता तो काश आज होटल मैनेजमेंट नहीं किया होता। So recently I mean 3 to 4 years back so I follow a band. There is a band called as Abhanga Repost. Okay. So उसमें से एक बेस गिटारिस्ट है, he is also watching us. So उन्होंने मुझे गिटार सिखाया. So this is the band from whom I got an inspiration. It's a folk band basically. Okay. वो लोग मराठी अभंगस का फ्यूजन करते हैं. So this is watching them I got this inspiration of getting into
I mean, I started loving guitar and music basically. And of course, as everyone knows, कि music gives positivity. Correct. Of course, कोई भी situation हो, music सुन के. बहुत. So yeah, so this is how I developed a passion for guitar. And मैंने एक दिन ऐसे ही जाके गिटार शॉप से खरीद लिया गिटार. Oh. कोई इरादा नहीं था क्लासेस वासेस लगाने का. So yeah, so that is how I mean, फिर क्लासेस वासेस लगाया and then this is how I developed this passion. And ये अभी बहुत I mean, it is like my first girlfriend now. All right, all right. So yeah, अभी हम लोग आगे जा ही रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं मिड 90s पे. तो कुछ एक गाना बहुत फेमस हुआ था, आपने सुना ही रहेगा ऑफ कोर्स, जहर मूवी का. जहर. डू यू रिमेम्बर एनी सॉन्ग ऑफ जहर मूवी, इमरान हाशमी? जहर. जहर, उदिता गोस्वामी, फिर शमिता शेट्टी. I kind of remember, but I have a very bad. अब अगर मैं गाना बोलूं अभी तो आपको, अरे आप तुरंत बोलेंगे ये है. So I will directly play the song. Okay. वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, ना मैं जानूं ना तू जाने, कैसा है ये मौसम कोई न जाने, कहीं से ये फिजा आई, गमों की धूप संगलाए, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, कैसी रातें वो बरसाते, वो भीगी भीगी यादें. क्या बात है, सीरियसली मैन. ये I was about to tell you that यही सॉन्ग है, but I was not able to guess it, but yes. और I guess प्रणाली ने बीच में लिखा भी है कि that was her favorite song. So wow, हमने एक ऑलरेडी फेवरेट सॉन्ग गा दिया है. So wow, amazing, amazing. क्या बात है. So दीपेश, गिटार के साथ साथ गाने का कैसे आपका ये हुआ कि, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पीछे बैकग्राउंड में गिटार बजाते हैं, बट दे डोंट रियली सिंग, बट देयर अ कॉम्बो विद अ गिटार प्लस सिंगिंग. तो वो कैसे थॉट आया आपके दिमाग में कि आई शुड आल्सो स्टार्ट सिंगिंग विद दिस? So गिटार अगर आप सीखते हो and until and unless you join any of the band or you collaborate with someone, so आपके पास कोई नहीं रहता गाना गाने के लिए. तो usually आपको, I mean, it's not that I am a very good singer, but usually गिटार जैसे आप सीखना चालू कर देते हो and yeah, प्रैक्टिस करते करते आपको वो एक आदत लग जाता है गाना भी गाने का. So there are
few people who become good singers, Oh, guitar bajate bajate. correct. So yeah, that is how I developed. So it goes hand in hand. So it was not anything like कि हाँ मुझे गाना भी गाना है, अच्छा, तो ये इसके साथ ही आ गया. क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग. और दीपेश, वन मोर थिंग, लाइक Yes. जैसे अभी आपका पैशन है गिटार और साथ में सिंगिंग करते हो, सो सो हाँ. हाउ डू यू मैनेज योर डेली रूटीन, ऑपरेशन मैनेजर जैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, तो योर डेली रूटीन और Mhm. उसके साथ साथ अपने पैशन को कंटिन्यू रखना, बिकॉज दिस ऑल्सो रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, सो हाउ यू मैनेज दोज Yes. थिंग्स ऑल टुगेदर? To be frank, गिटार एक ऐसी चीज है जो सीखने के लिए तो बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए. बिकॉज मैंने जब सीखना चालू किया था, सो 2-3 दिन में ही यू सी दिस फिंगर्स. सो 2-3 दिन में ही यू गेट दैट, आई मीन वाइब की बस हो गया, अभी नहीं सीखना है. बट ओह, until and unless you have that patience, so this is the patience which have helped me as well to maintain a balance between my daily routine and my passion. So डेली रूटीन जैसे आप बोलोगे वहां पे भी बहुत सारा यूज होता है. आपने भी यू हैव ऑल्सो सीन कि आई मीन इवेंट्स वगैरह हम करते हैं, करेक्ट. तो वहां पे भी हमारा टैलेंट थोड़ा सा शोकेस हो जाता है. सो या जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है वैसे हम करते हैं. एंड या दैट्स हाउ वी मैनेज इट. अच्छा, और जैसे आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि गिटार इज नाउ माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड, और मैंने जहां तक लोगों के मुंह से सुना भी है कि इफ यू नो वेरी वेल प्लेइंग गिटार, यू हैव अ वेरी प्लस एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेसिंग अ गर्ल. तो आपकी रियल लाइफ में ये कितने तक ये हुआ है? हैव यू अप्लाइड दिस पर्टिकुलर फंडा इन योर ओन रियल लाइफ? To be frank, yes. मतलब I haven't applied as such, but yeah, I mean बहुत सारी लड़कियां impress होती हैं गिटार देख के, and it's not that it's in other way, but yeah, I mean there are girls, I mean girls मतलब सिर्फ मैं girls की नहीं बात कर रहा हूँ, वो फिर आपकी मम्मी होने दो, Correct. आपकी बहन होने दो, वो फिर आपकी कोई अच्छी दोस्त होने दो, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड भी होने दो. So there are different ways, there are different music to impress all these. Because if मेरा अगर आप इंस्टा अकाउंट देखोगे तो मैंने एक वैराइटीज ऑफ म्यूजिक गाया है. रिसेंटली मैंने गाया था मदर्स डे स्पेशल पे जो तारे जमी पर का गाना है, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरों से डरता हूँ मैं माँ. Oh, So it was dedicated to all the moms. correct. So it's like that. So और आप That's- मेरे पर्सनल सीक्रेट बताता हूँ आपको. आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे देखोगे तो आपको ज्यादातर रोमांटिक सॉन्ग्स ही मिलेंगे. And definitely guys, I would really like and would want such kind of talent to get recognized. तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, प्लीज फॉलो हिज अकाउंट, बिकॉज आई एम रियली वेरी थैंक्स के उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट भी, वी हैड एन वर्ड विद ईच अदर. हम लोग एक दूसरे को काफी अच्छे से भी जानते हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि लाइव आ जाए. तो प्लीज ऐसे लाइक दिस टाइप ऑफ टैलेंट शुडंट गो वेस्ट, एंड दैट इज व्हाट माय मेन मोटो वाज टू ब्रिंग अप दिल से बोल काइंड ऑफ थिंग ऑन प्लेटफॉर्म वेयर अ हिडन टैलेंट, जो हम लोग के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, जो हम लोग कहीं कोशिश करते हैं बता पाने की, लेकिन कहीं कुछ वजह से नहीं बता पाते. सो दिस प्लेटफॉर्म इज स्पेशली फॉर यू गाइस, एंड थम्स अप दीपेश वंस अगेन. सो थैंक यू. हमारा बॉलीवुड जैम का सेशन फिर से अब एक लास्ट थोड़ा और ट्रैक हो जाए आपके अल्फाज में कुछ अच्छा. ऑफ कोर्स. यस. सो ये गाना है, ये रिसेंटली रिलीज हुआ है फ्रॉम द मूवी लव आजकल 2. ओह, सो मैंने ये अपलोड भी किया था मेरे इंस्टा अकाउंट पे, एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर दिस सॉन्ग. अच्छा. तो मैंने चूज किया कि मैं अब लेटेस्ट गाना है तो यही गाना गाऊंगा. So the name of the song is Shayad. So here we go. शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद.
शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन रहो कहीं शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो कि हम भी हम नहीं, न चाहिए तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। आँखों को ख्वाब देना खुद ही सवाल करके, खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से, बिन काम काम करना, जाना कहीं वो चाहे, हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से, ये कोशिशें तो होगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होगी कम नहीं, न चाहिए तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो कि हम भी हम नहीं। थैंक यू। क्या बात क्या बात क्या बात, वाओ। सो आई गेस सीरियसली मैन बहुत मजा आ रहा है, और सैटरडे को 7 PM के बाद जो तुमने ये जान डाल दिया ना पूरे सैटरडे का, तो संडे में भी इतना ही जान रहेगा, बिकॉज इट्स रियली अ वीकेंड और काफी अच्छा सेशन, एंड आई होप ऑल द व्यूअर्स आर एंजॉयिंग विद अस, और काफी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के कि इट्स वेरी नाइस प्लेटफॉर्म, और बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। श्वेता ने भी कुछ कमेंट्स किए हैं, मीत ने भी किया हुआ है कमेंट, स्नेहल ने भी बीच में कमेंट किया हुआ है, सो जिनल ने यस सो अमेजिंग दीपेश। अच्छा एक सवाल है छोटा आपका, यस जैसे सब कहते हैं कि 3 म्यूजिकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं किसी की लाइफ में, सो हु आर योर 3 म्यूजिकल इन्फ्लुएंसर्स एंड व्हाई? मतलब आपको किसने म्यूजिकल इन्फ्लुएंस किया है? सो म्यूजिकल इन्फ्लुएंस इज बेसिकली, जैसे मैंने बताया, एक तो इन्फ्लुएंस है जो द बैंड विच आई फॉलो, उनसे इन्फ्लुएंस होके आई स्टार्टेड आई डेवलप माय पैशन फॉर गिटार। ओके। दूसरा म्यूजिकल इन्फ्लुएंस है बोला जाए तो the surrounding, the environment basically. So I mean if you see अलग अलग सराउंडिंग्स को देख के, अलग अलग माहौल को देख के, there is ये एक मूड बन जाता है आपका। Correct. So that is also one of the influence which I get. Third influence बोलेगा तो third influence I have developed from I have developed it from lot of struggling newcomers, you can say, जो कि जो struggle करके बहुत ऊपर आते हैं। So it's like that only. मैंने भी मेरा बचपन से एक पैशन नहीं था गिटार, so अभी डेवलप हुआ है 2-3 साल पहले, so it's like that. I am also struggling in that case. And definitely struggling and hard work is more required. जैसे मैं खुद भी struggle कर रहा हूँ आज in this particular platform. What I also do anchoring, Yes. hosting, you know that. So yeah, this is all Correct, the hard work and struggling goes, but definitely we achieve success.
and keep going. Yes. That is main motto and main key to go ahead on this particular field or platform. जो आपका काफी हद तक बहुत अच्छे से ग्राफ जा रहा है, तो उसी ग्राफ को बरकरार रखिए. दैट इज व्हाट माय विशेस एंड आई गेस ऑल द व्यूअर्स विशेस. दीपेश, वन थिंग, जैसे अभी आपके 2-3 साल से ये पर्टिकुलर आपका पैशन हुआ है, तो कभी कभी होता है कि वी डोंट गेट अ गुड फैमिली सपोर्ट फ्रॉम अस. मतलब अपनी फैमिली वाले कभी हमको कभी डिनाई करते हैं या कभी बोलते हैं कि नहीं. सो हैव यू फेस्ड एनी काइंड ऑफ दोस प्रॉब्लम विथ योर फैमिली? टू बी वेरी फ्रैंक, फैमिली का आपने टॉपिक निकाला है, तो मेरे को ऐसा कोई ऑब्जेक्शन या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ फैमिली को लेके. बट इट्स देयर इज वन फनी दिस थिंग. जब से मैंने ये आई मीन इनिशियली जब स्टार्ट किया था गिटार बजाना, एंड आई हैवंट जॉइंड एनी क्लासेस फॉर दिस. आई मीन यूट्यूब से ही देख के पहले. सो एट दैट टाइम जो मैं बजाता था मेरे को खुद को नहीं समझता था. So my family used to get irritated कि क्या बजा रहा है, तेरे को भी समझ रहा है क्या? So it is kind of funny this thing. But yes, family always supported. Passion है, so they are always with me. Perfect, great, great. अच्छा, अगर आपको एक मौका मिले कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप बने, तो what kind of musical instrument would you like to be and why? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैं बनना चाहूंगा फ्लूट. Oh, wow. फ्लूट बिकॉज मेलोडियस है. इट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक पॉजिटिव वाइब आता है. Correct. आई मीन इफ अर्ली मॉर्निंग आप सुनोगे कोई फ्लूट, आई मीन इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन मेडिटेशन. True. सो या एक पॉजिटिविटी आता है फ्लूट का, जो आई मीन जो सूदिंग वॉइस है. Yes. इससे so that's the reason I would like to become a flute. Alright. और जैसे आपने अभी जैसे फ्लूट का बताया हमको, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ थॉट लाइक अभी जैसे आप गिटार प्ले कर रहे हो, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल आल्सो ट्राई सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन द नियर फ्यूचर, कि यू वांट टू स्टिक टू द पैशन के गिटार ही सबसे पहले मेरे को फुल फ्लेज करना है? हाउ इज इट? So I mean मैं बताना चाहूंगा कि विद गिटार I have also started learning harmonium. Oh. So I mean that's also which I am learning. So yeah, so जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट सीखने को मिलता है, that is also beneficial to me only. Correct. So the more you learn, the more you develop yourself. तो अच्छा है, मतलब अगर और भी, yes, I am interested to learn more and more musical instruments. Okay. Just one word, if अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? फर्स्ट वर्ड इज लव. वन वर्ड में आंसर देना है? सिर्फ वन वर्ड, नो थॉट, बिकॉज ये दिल से बोल प्लेटफॉर्म है, तो जो भी आपके मन में आए स्ट्रेट अवे दिल से आपको बताना है हम सबको. सो पहला वर्ड है लव. पॉजिटिविटी. ग्रेट. पैशन. एनर्जेटिक. ग्रेट. गिटार. लव. ग्रेट. तो आई होप दीपेश यू आर आल्सो एंजॉयिंग विद अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म. आपको कैसा लग रहा है दिल से बोल में आकर? हाउ आर यू फीलिंग विद मी? So yes, I mean it's a very great feeling. Will firstly would like to thank you for inviting me and giving me also a platform to showcase my talent. And I wish you all the luck कि इसके आगे भी आप I mean और कई talents को भी मौका दे. And yeah, it's a very good job which you are doing, and may this Dil Se Bol which is started by you achieve more and more great heights. Thank you, thanks a lot. So Dipesh, लास्ट में मैं जाता हूँ कि अगर हम हमारा सेशन ऑलरेडी 7:35, सो एक लास्ट ट्रैक आपके हिसाब से, जो भी आपका दिल करे, एक बहुत अच्छा ट्रैक आपके हिसाब से प्लीज हम सब के लिए. ओके. ये गाना है मोस्टली बहुत सारे लोगों को पसंद रहेगा. ये गाने का नाम है गुलाबी आंखें.
मेरा फेवरेट। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 गुलाबी आंखें तेरी देखी, शराबी दिल हो गया, संभालो मुझको मेरे यारों, समझना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार से, मैं लुट गया मांगते का सहा, मैं कहीं का ना रहा, या कहूँ मैं दूंगा पूरा ये जादू तेरी आंखों का, तेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी दिल हो गया। प्यार हमें इस मोड़ पे आया, प्यार हमें इस मोड़ पे आया, दिल करे है कोई ये बताए क्या होगा, प्यार हमें इस मोड़ पे आया, दिल करे है कोई ये बताए क्या होगा, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, दिल से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना हर सच्चा लगता है, वो क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, मेरा दिल चांदनी हो तो क्या बात। चांद से है दूर, चांदनी कहाँ। Thank you. Thank you so much, Dipesh, for joining with me once again. God bless you. कोरोना का टाइम है, stay home, stay safe, और thank you so much Of course, of course. viewers for giving us the valuable time watching us. और इसी तरह से next week और एक अच्छा टैलेंट में प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो जितने ज़्यादा लोग हैं प्लीज़ ज्वाइन करें, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू शेयर दिस प्लेटफॉर्म विथ ऑल योर फ्रेंड्स फैमिलीज, और जो भी टैलेंट आप लोगों को लगता है कि वो शोकेस होना चाहिए, सो प्लीज़ DM मी इंस्टाग्राम पे, मेरे साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, एंड वी कैन कंडक्ट अ सेशन, अ वेरी अमेजिंग सेशन लाइक दिस टुडे. थैंक यू दीपेश, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स. थैंक यू सो मच. बाय दीपेश, आपको कुछ कहना है? Bye, Bhavin. So yes, I would like to thank you for giving me such a nice platform to showcase my talent. And yes, I would like to also tell my viewers to follow your page. You can follow Bhavin Movaya, and you can also
get updates of his upcoming projects. So yes, do follow, Thanks, and thank you again. thanks, and do follow Dipesh also, Guitaristic Dipu. Yeah, so my Insta handle is guitarholic underscore Deepu. Okay, So you can follow me. thank you all. Bye bye. Thank you. Have a great weekend. Bye. Bye.